Good morning, dear student. Surya School Revari representing English grammar topic that is non-finite verb. I am Mrs. Bubbly, a TGT English teacher. Today we are going to study non-finite verb. Before that, let me explain you verb. Verb is divided into two types, that is finite and non-finite. As you can see here, finite and non-finite. Finite means change according to subject and tense. It change according to the subject and tense. If subject changes, the tense verb will also change. The tense change, the verb will change. Example, I want to play cricket. So here I is the subject, want is the verb. If we'll change I into he, it change into wants. And wants can be changed into wanted if we'll change it, the sentence into the past tense. So move on to the non-finite word. Non-finite word does not change. There is no change according to the subject or tense. As you can see with the same example, want, wants, wanted. These are the finite verb. To play, to play, to play. This is non-finite verbs. So non-finite verbs change बिल्कुल नहीं होते हैं. These are divided into three parts, that is infinitive, gerund and participle. So infinitive, the rule for infinitive is 2 plus verb first form or verb first form. In infinitive, we are using only verb first form with to or without to. If we are using to, it will be called as infinitive with to, and if you are using only verb first form but not using to, it can be called as infinitive without to, or the other name is bare infinitive. Next is gerund. Gerund, we are using verb first form plus ing. Verb first form plus ing. Next is participle. Verb first form plus ing. If you see in gerund also the same thing has been used. यहाँ पर भी verb first form plus ing है और यहाँ पर भी verb first form plus ing. ये जब explain करेंगे तो इसमें difference बताएंगे कि दोनों में difference क्या है. Next, पार्टिसिपल में ये प्रेजेंट में यूज होता है. पास्ट के लिए वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाता है. हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए आता है. सो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इस वीडियो में. वी आर गोइंग टू स्टडी इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इन्फिनेटिव विद टू और बेयर इन्फिनेटिव. यू कैन कॉल बेयर इन्फिनेटिव एज इन्फिनेटिव विदाउट टू. See the example, allow me to go home. Let me go home. Here, if to is used, this is called infinitive with to, and here to is not used, therefore it is a bare infinitive. Move on to the next. Rules. We are studying now the rules of infinitive with to. See the first rule. Adjective, adverb plus enough plus infinitive with to. इफ इन अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हो और उसके बाद एनफ का यूज़ किया है तो टू इन्फिनेटिव आएगा. ये जो एग्जांपल है ये हमें चेक करने हैं वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट. सो विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द एग्जाम्पल. द फर्स्ट वन इज शी इज वाइज इनफ taking right decision. So here in this, wise is the adjective and enough word is given. So यहाँ पर क्या लगेगा, with to infinitive, but यहाँ पर क्या लिख रखा है इन्होंने ing. तो इस ing की प्लेस पे क्या आ जाएगा, to take right decision. तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, she is wise enough to take right decision. Same goes to second, he is bold enough go alone. So here enough word is given, before that bold, that is the adjective is given, to alone. So here it will be to go. enough के बाद क्या आ जाएगा, to word आ जाएगा, to go alone.
होप दिस इज क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड रूल. अगर आपके सेंटेंस में नो, लर्न, टीच दिया है तो उसके बाद हमेशा WH आएगा, WH वर्ड आएगा और फिर उसका इन्फिनेटिव आएगा. ये चीज़ याद रखनी है. WH में एक चीज़ आपको याद रखनी है, वाई आप नहीं कंसिडर करोगे. वाई का यूज़ कंसिडर होता है बेयर इन्फिनेटिव में. WH में वाई, WHY का यूज़ नहीं होता है. WHY ये यूज़ नहीं किया जाता है. एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल में भी मिस्टेक है, आपको करेक्ट करना है. डू यू नो टू स्टार्ट द गेम. क्या आपको डू यू नो टू स्टार्ट द गेम. तो यहाँ पर क्या है, नो वर्ड यूज़ किया गया है. नो वर्ड के बाद हमें बताया था कि क्या यूज़ करना है, WH यूज़ करना है. तो यहाँ पर क्या होता, क्या लिख सकते हो आप, व्हेन टू स्टार्ट द गेम भी लिख सकते हो. WH में व्हेन भी आ सकता है या फिर हाउ टू स्टार्ट आ सकता है. How to start the game. Move on to the second one. I am learning to play guitar. I am learning, learning ये भी आने से आपको WH यूज़ करना है. How to play guitar, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, how. Same goes to third one. Today I will teach you to read newspaper. तो टुडे आई विल टीच यू हाउ, यहाँ पर भी हाउ आ जाएगा. हाउ टू रीड न्यूज़ पेपर. होप दिस इज क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इफ़ अ सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस में दिया है हैप्पी, नीड, डेयर, वॉन्ट, वॉइस, ईगर, ग्लैड, ईजी, डिसाइड, एग्री, ट्राई, ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं तो उसके बाद इन्फिनेटिव टू का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सी द फर्स्ट वन, यू नीड वर्क हार्ड. तो यहाँ पर नीड गिवन है. इफ नीड इज गिवन तो आप यहाँ पर लिखोगे टू वर्क हार्ड. सेम वे सेकेंड वन, ही एग्री टू प्ले. आई एम ग्लैड टू सी यू. तो ये चीज़ यहाँ पर आएगी. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, नीड और डेयर जो मैंने यहाँ बॉक्स में लिख रखा है, नीड और डेयर यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, सो वी आर यूजिंग टू. नीड और डेयर अगर मोडाल्स की तरह यूज़ होता है तो वहाँ पर आप बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करोगे. नाउ होप द रूल ऑफ इन्फिनेटिव टू इज़ क्लियर टू यू. यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 रूल्स. यहाँ पर बस ये 3 रूल है, एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एनफ प्लस इन्फिनेटिव विद टू, नो, लर्न, टीच, WH, इन्फिनेटिव टू, एंड द लास्ट वन इज, ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर ये फॉलो किए हैं तो भी आपको उसमें टू यूज़ करना है. अब हम स्टार्ट करेंगे द रूल ऑफ बेयर इन्फिनेटिव. रूल ऑफ बेयर इन्फिनेटिव. फर्स्ट रूल, हैड बेटर, would, rather, would sooner, had sooner, rather than, sooner than, ये वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो उसमें बेयर इन्फिनेटिव आता है. बेयर इन्फिनेटिव मीन्स नथिंग बट विदाउट टू. टू का यूज़ नहीं किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, यू हैड बेटर टू गो नाउ. हैड बेटर गिवन है, टू वर्ड आपका कैंसिल हो जाएगा. यू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यू हैड बेटर गो नाउ. सेम वे द सेकेंड वन इज, आई वुड रेदर, टू कैंसिल हो जाएगा, डाई. और एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर फिर देन के बाद फिर से टू बैग आया है. देन वर्ड अगर गिवन है उसके बाद कभी भी टू नहीं आएगा. रिमेंबर, देन वर्ड गिवन है तो उसके बाद कभी भी टू नहीं आएगा. सो दिस इज क्लियर आई होप. मूव ऑन टू द सेकेंड रूल. मेक, अगर मेक वर्ड है, मेक का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो यहाँ पर क्या है, मेड वर्ड गिवन है. एक्टिव वॉइस में अगर मेड वर्ड गिवन है तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा. अगर पैसिव वॉइस है तो टू इन्फिनेटिव आएगा. रिमेंबर, एक्टिव वॉइस बेयर, पैसिव वॉइस टू इन्फिनेटिव आएगा इफ मेक इज गिवन. सो सी हियर, आई मेड हर टू लाफ. तो यहाँ पर आई मेड हर टू लाफ, दिस इज एक्टिव वॉइस. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा. सी द सेकेंड वन, आई वॉज मेड अंडरस्टैंड बाय द टीचर. बाय द टीचर ये क्या है, पैसिव वॉइस. तो यहाँ पर तो टू ऐड करना है, मेड के बाद टू को ऐड करना है.
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट। थर्ड आपका रूल है लेट। अगर लेट वर्ड गिवन है, अगर सेंटेंस पैसिव हो या फिर एक्टिव वॉइस में हो, आपको बेयर ही यूज़ करना है। ओनली मेक के लिए था कि पैसिव में यूज़ नहीं करना है। लेट हिम टू डू हिज वर्क, लेट हिम डू हिज वर्क, टू हट जाएगा। शी वॉज लेट गो आउट बाय द प्रिंसिपल। सो यहाँ पर ऑलरेडी आपको टू नहीं गिवन है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। इफ इन अ सेंटेंस आपको दिया है डू, डज, डिड, डू की तीनों फॉर्म में से कुछ भी दिया है, उसके साथ वर्ड यूज किया है एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और बट और एक्सेप्ट भी यूज़ किया है, ये चीज़ें यूज़ किया तो बेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, वी डिड नथिंग बट टू टॉक। सो यहाँ पर डिड है डू की फॉर्म, पास्ट फॉर्म, डिड है, नथिंग वर्ड है और बट वर्ड है, तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आएगा तो टू कैंसिल हो जाएगा। सेम वे डज है, एवरीथिंग है, एक्सेप्ट है, तो यहाँ पर भी टू कैंसिल हो जाएगा। सो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा, वी डिड नथिंग बट टॉक, वी डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक। अब इसका नेक्स्ट रूल आता है, अगर मोडाल्स वर्ड गिवन है जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, डेयर टू, अगर ये गिवन है तो यहाँ पर देखो जो मैंने आपको बोला था नीड नॉट और डेयर नॉट वर्ड गिवन है। अगर नीड नॉट, डेयर नॉट गिवन है तो बेयर इन्फिनेटिव लगेगा और ये मॉडल की तरह यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट टू ओबे माई रूल। अगर आप जर्नल रीड करते हो तब भी आपको क्लियर हो जाता है, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा क्योंकि मस्ट गिवन है, नीड नॉट गिवन है टू नहीं आएगा, डेयर गिवन है टू नहीं आएगा और सेंटेंस सेम रहेगा। द लास्ट रूल ऑफ दिस इज वाई नॉट प्लस बेयर। जैसे कि मैंने प्रीवियस इन्फिनेटिव एक्सप्लेन किया था तो उसमें बोला था WH वर्ड आता है आपका, बट WH वर्ड में वाई का यूज़ नहीं होता, वो वाई का यूज़ यहाँ होता है। अगर आपको वाई गिवन है, वाई नॉट तो टू नहीं आएगा, वाई नॉट सी अ गुड डॉक्टर। सो दिस इज द एंड ऑफ infinitive verbs. In next video we will study the next part of non-finite verb. Thank you student, hope you understand the chapter.